Good morning, children. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 25 Festive Spirit. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर से. Children, in this chapter we will be learning about different types of festivals around the world. Okay? Now there are some clues given to you, and you have to name the festival what they are talking about, and there are some missing alphabets and you have to fill those alphabets to get the correct name of the festival. So let's start. The first one is, this is the Jewish festival of lights. Jewish means Jewish is the religion. ठीक है, ये एक religion है, just like Hindu, Muslim, Sikh, Christian. Okay, this Jews is also a religion. It is most these type of these religious people are mostly found in the countries like Israel, Lebanon, Jordan, and somewhere in Italy, France. Okay, so Jews festival of lights. Okay, like Hindus festival of lights is Diwali, so Jews festival of lights, it start on the 25th day of the Jewish calendar month Kislev and continues for 8 days and 8 nights. Candles are lit every night, special games are played and traditional dishes are prepared. ठीक है, ये फेस्टिवल कितने दिन चलता है उनका? 8 दिन तक चलता है. 8 days and 8 nights मीन्स 8 दिन तक. सो द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज Hanukkah. Okay, Hanukkah. So this festival is the festival of Jewish. Now second one is, it marks the end of Ramadan, the Muslim holy month of fasting. ठीक है, like we call it as Ramzan also, but here it is written Ramadan. It is celebrated in Shawwal, the 10th month of the Islamic calendar. ठीक है, like the 10th month of the Christian calendar is October, तो वैसे इस्लामिक कैलेंडर भी एक अलग होता है, हिंदू कैलेंडर भी एक अलग होता है. एवरी रिलीजन हैज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स. ठीक है, तो इन द इस्लामिक कैलेंडर उसमें जो 10th मंथ होता है उसको शवाल कहते हैं, और उस शवाल में दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड, एंड इस फेस्टिवल का नाम है ईद उल फितर. ठीक है, ईद उल फितर. Like in India also, this festival is celebrated all over the world in different Muslim countries like India, Pakistan, Iraq, Iran, UAE, Saudi Arab, and Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, and different many other countries where the Muslim religion people are living, they celebrate this festival. Okay, so this festival is celebrated by attending some prayers. We called it as namaz. Okay, and people go to the houses of different persons. ठीक है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं उनसे मिलने. Just like in Hindus, we celebrate Holi. Okay. Now we come to the next one. This is a New Year's Day of the Parsis. Now Parsis is the word. Uh, Parsis means Persian. Persian means Iran. Iran ancient name was Persia. Okay. सो ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्शिया. और जो लोग वहाँ के लोग थे उनको क्या बोलते थे? पारसीज. जस्ट लाइक इंडिया के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडियंस. तो वैसे पर्शिया के जो लोग हैं उनको पारसीज बोलते थे. और पारसीज सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल. द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज नवरोज. नवरोज मतलब नव मतलब नया, रोज मतलब दिन. ठीक है, मैं हर रोज़ खाना खाता हूँ. हर रोज़ मीन्स हर दिन.
ठीक है। तो रोज़ का मतलब होता है दिन और नव का मतलब होता है नया, तो नव रोज़ मीन्स नया दिन। तो उनके लिए न्यू ईयर एक नया दिन से स्टार्ट होता है, तो दे सेलिब्रेट इट एज द न्यू ईयर। जैसे क्रिश्चियन कैलेंडर में न्यू ईयर किस दिन होता है, 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी का पहला दिन। वैसे पारसीज का पहला दिन होता है ये नवरोज। नाउ वी कम टू फोर्थ वन। दिस फेस्टिवल हेल्ड इन जनवरी सेलिब्रेट्स लॉर्ड बुद्धा's फर्स्ट विजिट टू द सिटी ऑफ Kelaniya in Sri Lanka. Thousands of people visit the sacred Kelaniya temple in Colombo. Drummers, dancers, and elephants are part of a colorful procession arranged during the festival. Procession means पूरा, जो जिसको कहते हैं जमावड़ा, जो लोगों का पूरा झुंड होता है, दैट जो पूरा उनका झुंड होता है जो पूरा आगे इस जलसे में चलता है, ठीक है। अरेंज्ड दीज, उसमें कई सारे ड्रम्स बजाने वाले होते हैं, डांसर्स होते हैं, डांस करते हैं, एलिफेंट्स होते हैं जो चलते हैं। इस पूरे झुंड को बोलते हैं, दिस इज द प्रोसेशन विच इज गोइंग विद दिस फेस्टिवल, एंड दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड एज दुरुथु पेराहेरा। ओके, दुरुथु पेराहेरा। सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बिकॉज लॉर्ड बुद्धा's फर्स्ट विजिट टू द सिटी ऑफ केलानिया इन श्रीलंका, ठीक है, इस वजह से ये बनाया जाता है। नाउ द फिफ्थ वन इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला इन इंडिया ऑनर्स द एंशिएंट किंग महाबली। द फेमस स्नेक बोट रेस इज हेल्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, ठीक है। ये फेस्टिवल किसके ऑनर में, किसके किसके सम्मान में मनाया जाता है, द एंशंट किंग महाबली, ठीक है। महाबली एक राजा थे केरला में, उनके सम्मान में, उनकी ऑनर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में एक गेम भी होता है, बोट रेस होती है, ठीक है, क्योंकि केरला में बहुत सारी झील हैं, वहाँ पे नदियाँ हैं, तो उसी में ये लोग बोट रेस करते हैं। और बहुत ही लंबी लंबी बोट्स होती हैं जिसपे अराउंड 40-50 पर्सन्स बैठते हैं और वो बोट को रो करते हैं और वो दौड़ाते हैं, और बोट रेस होती है कि किसकी बोट सबसे आगे निकल जाएगी, ठीक है। सो दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड ओनम। ओनम इज दी हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब हार्वेस्ट मीन्स होता है जब हमारी फसलें कट कर आती हैं। तो ये लोग जो क्रॉप्स बोते हैं, अनाज बोते हैं जो खेतों में, तो जब वो हार्वेस्ट होती हैं मीन्स जब वो कटती हैं, मीन्स जब वो कट के घर आती हैं, तो उस खुशी की वजह से, वो खुशी क्यों होती है उनको, उनको ये होती है कि हमारी फसल जो है वो सही सलामत हमारे घर तक आ गई है, और भगवान ने हमारे ऊपर कोई वैसा नहीं किया कि हमारी फसलें तबाह नहीं की, खराब नहीं की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है तो फसलें ख़राब हो जाती हैं, या बाढ़ आ जाती है नदियों में, तो खेतों में पानी भर जाता है तो भी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से, या कभी कभी सूखा पड़ जाता है, मतलब पानी ही नहीं मिलता है, तो भी फसलें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से कई कारण होते हैं जो फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर सारी चीज़ों से अगर हम बचते हुए आ जाएं और हमारी फसल सही सलामत पैदा भी हो जाए और हम उसको काट कर घर भी ले आएं, तो हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि आग भी लग जाती है फसलों में, तो पूरी की पूरी, सारी की सारी फसलें, खेत के खेत पूरे जल जाते हैं। तो उस सब चीज़ों से बचते हुए जब हमारी फसल घर आ जाती तो हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे आने वाले अगले साल के लिए हमें खाने को मिल जाता है, प्लस उसको बेच के जो पैसा मिलेगा उससे हम आगे के दूसरे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस फेस्टिवल इज़ ओनम। और इसी तरीके से कंट्री के कई डिफरेंट स्टेट्स में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स मनाते हैं रहते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव टू द सेकंड पेज, number 6. This is an annual feast day in Ireland celebrated in honor of St. Patrick, one of the patron saints of the country. People generally wear green on this day. So कौन सा फेस्टिवल है ये, सेंट पैट्रिक्स डे, ठीक है। ये वहाँ के एक सेंट थे, सेंट मीन्स संत, जैसे हाँ इंडिया में संत होते हैं, लाइक जो योगी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, बाबा होते हैं, वो दोज आर कॉल्ड सेंट्स, ओके।
सो कौन थे ये? सेंट पैट्रिक थे, और इनके लिए, इनके ऑनर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? आयरलैंड में। आयरलैंड इज़ दी पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आयरलैंड कहाँ पर है? एकदम नॉर्थन साइड है ऑफ, बिल्कुल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बगल में है आयरलैंड, ओके। सो आयरलैंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। Now the seventh one is, this Christian festival celebrates the resurrection of Jesus Christ. Special decorated eggs are exchanged in this festival. So this festival is Easter, okay. ईस्टर हम लोग क्यों मनाते हैं? ईस्टर हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन हो गया था। क्रूसिफिकेशन मीन्स जब उनको क्रूज पे चढ़ा दिया गया था। क्रूज पे क्यों चढ़ाया गया था? उनको इसलिए क्रूज पे चढ़ाया गया था क्योंकि वहाँ के जो रोमन जो राजा थे वो मानते थे कि वो ही गॉड हैं, और जीसस क्राइस्ट कहते थे कि नहीं, गॉड कोई और है और वो हम सब के लिए एक हैं, ठीक है। तो उनकी बातें न मानकर उनको बोलते थे कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए उनको सज़ा सुना दी थी, डेथ की, मौत की सज़ा सुना दी थी। और उस समय जिनको भी मौत की सज़ा सुनाई जाती थी उनको क्रूसीफाई किया जाता था। जस्ट लाइक इन इंडिया जैसे हम लोग क्या करते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं, है ना। तो वैसे ही उस समय क्रूज पे चढ़ा दिया जाता था और उनको डेथ की सज़ा सुनाई जाती थी। तो उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट को भी सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर से ज़िंदा हो गए थे, मरने के बाद भी ज़िंदा हो गए थे, ये लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। तो जब वो ज़िंदा हुए थे तो उसको बोलते हैं रिसरेक्शन, ठीक है। रिसरेक्शन हुआ, ठीक है। तो उस दिन को हम लोग ईस्टर के नाम से जानते हैं और ईस्टर मनाते हैं, और उस दिन बहुत खुशियाँ, लोगों खुश होते हैं, और उस दिन केक बनाते हैं और एक दूसरे को बांटते भी हैं, शेयर भी करते हैं केक, ओके। सो the next one is 8th. This is a national Mexican holiday celebrated throughout Mexico and around the world in other cultures. Family and friends gather to pray and remember loved ones who have died. तो this day is called the Day of Dead, ठीक है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? मैक्सिको में। मैक्सिको कंट्री कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मतलब जहाँ पे आप यूएसए देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जस्ट उसके नीचे एक कंट्री आती है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको में ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग पहले जो मर चुके हैं उनकी याद में या उनको याद करने के लिए एक दिन होता है जिस दिन वो सब उनके बारे में याद करेंगे और प्रेयर करेंगे, कैंडल्स जलाएंगे, ठीक है। सो दैट डे इज़ कॉल्ड द डे ऑफ डेड। Now we come to the next one, ninth. This festival celebrated in mid-April marks the Assamese New Year. ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने एक न्यू ईयर उसके लिए पढ़ा था, जस्ट लाइक नवरोज़। तो ये किसका था? पारसीज का न्यू ईयर था, ठीक है। वैसे ही द असमीज़ का न्यू ईयर है, दैट इज़ कॉल्ड रोंगली बिहू। रोंगली बिहू। सो in this new year they do the bihu dance also. They do the dance that is called bihu dance, ठीक है। और it is coming of spring where farmers prepare the paddy field. Paddy field means धान की खेती के लिए जब वो प्रिपेयर करते हैं तब वो खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। जब वो अपने अनाज को बोते हैं और उस दिन वो खुशियाँ मनाते हैं, तो और वो डांस भी करते हैं, और उस फेमस डांस का नाम है बीहू डांस, ओके। और इस फेस्टिवल का नाम है रोंगली बीहू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, 10th. Celebrated in Brazil, the United States, France and other countries, this festival is characterized by colorful parades, carnivals and feasts. This festival is Mardi Gras. Mardi Gras, okay. So this festival is celebrated in many countries like United States, France and Brazil, ठीक है। सो दिस फेस्टिवल कंप्राइज ऑफ परेड्स। इसमें परेड्स निकलती हैं जिसमें लोग डांस करते हुए जाते हैं, और कई सारे जहाँ मतलब कार्निवल्स होते हैं,
और इसमें फीस्ट होती है. फीस्ट मीन्स दे हैव समथिंग टू ईट एंड. ठीक है, तो इसमें कुछ खेलते कूदते झूमते गाते हुए सब लोग जाते हैं. और दिस फेस्टिवल इज मार्दी ग्रास. So I end up my video here. Children, if you want to know anything, you can ask me on the WhatsApp group. Thank you, children.